Jai Hind students. So today we will start with the rest of the question of 5.7 second order derivative. So till in last video we discussed about second order derivative and we solved from 5.7 exercise question number 1 to 9. Now today we will solve in this video question number 10 to question number 17. Let us see question number 10. Sin log x. Again, it's a combination of two functions. So let y is equal to sin log of x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy upon dx is equal to sin का कितना हो जाएगा? Cos log of x. ये तो हुआ sin का. अगेन फॉर लॉग की होती है 1 अपॉन एंगल एंड देन व्हाट अबाउट एंगल x की होती है 1. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos log of x अपॉन x. कम टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ it is in the form of u upon v. So use u upon v form. dy upon dx का आ जाएगा अगेन dy upon dx का आ जाएगा d square y upon dx का स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस? ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमिनेटर, d upon dx ऑफ cos का एंगल है log ऑफ x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ सॉल्व इट. x एज इट इज cos का करेंगे माइनस साइन एंगल एज इट इज. नाउ कम टू एंगल. log का करेंगे 1 अपॉन log का जो भी एंगल होगा, फिर इस x का करेंगे वो 1 होता है. नो नीड टू राइट, क्लोज दिस. देन माइनस cos log ऑफ x एज इट इज. x का करेंगे 1, अगेन नो नीड टू राइट, x स्क्वेयर. कैंसिल आउट x एंड x. व्हाट इज लेफ्ट विद यू? सो d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस साइन log ऑफ x माइनस cos log ऑफ x अपॉन x स्क्वेयर. सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम 10. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम 11. If y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, here it is given what to prove? Second order derivative plus y function is equal to 0. This we have to prove. So from this we come to know we have to find out the second order derivative. So let us see. Y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. This is your first equation. See very carefully. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So y का आ गया dy upon dx माइनस 5 कांस्टेंट है एज इट इज. cos का होता है माइनस साइन x. सो साइन x माइनस 3 cos x. दिस इज योर second equation. Okay, now again differentiate because we have to find out the second order derivative. So differentiate with respect to x. d square y upon dx का square is equal to minus as it is 5 as it is. साइन का करेंगे cos x. Then
माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज, कॉस का करेंगे वो होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस और यहां पे साइन एक्स. नाउ two things are there, you can do two things, whether put this and this value in this equation in left hand side and check कि whether the addition of these two functions is equal to 0 or not. एक तो ये प्रोसीजर है, दूसरा ये भी है कि चेक करो, यहां पे वैल्यू पुट करके देखो क्या बन सकती है. लिसन हियर, अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, और ये वैल्यू किसकी है, y की, तो डायरेक्टली आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ y, तो ये बना माइनस y. अब इसको इधर ले आते हैं, सो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड. सो टू वेज आर देयर, वेदर यू कैन इंट्रोड्यूस द वैल्यू or you can take the value of these whatever you required over here, put here and find out ki whether they are equal to the right hand side or not. Pause the video to note down. Now come to question number 12. It's very important and very interesting according to the paper point of view. Question is, if y is equal to cos inverse x, find double order derivative in terms of y alone. It means कि जो भी आपका आंसर आए वो सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, y में ही आना चाहिए, x वहां पे नहीं होना चाहिए. लेट अस सी कैसे. y इज इक्वल टू cos इनवर्स x. आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे. एक ऐसा भी है, फाइंड आउट dy अपॉन dx इन टर्म्स ऑफ इनवर्स, उसके बाद दोबारा से करें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. यू कैन यूज दैट ऑल्सो. आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे. y is equal to cos inverse x. So I can write like this, cos y is equal to x, or x is equal to cos y. अब ये x फंक्शन है किसमें, y में. Now differentiate with respect to y, not with respect to x. So differentiate with respect to y. x का क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy, cos का माइनस साइन y. बट हमें तो क्या चाहिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, यानी x पीछे आना चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y, और यू कैन से दैट माइनस कोसिकेंट y. Now again differentiate, यानी आपके पास बना dy अपॉन dx is equal to minus cosecant y. Okay, again differentiate. Now differentiate with respect to x. ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस कोसिकेंट y की होती है क्या, माइनस कोसिकेंट y कॉट y, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कोसिकेंट y कॉट y, ये होती है कोसिकेंट की. वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x नाउ, तो y की करेंगे तो y की क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx. नाउ dy अपॉन dx की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, वो वैल्यू है माइनस कोसिकेंट y, तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y कॉट y. सो दिस इज योर सॉल्यूशन कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है इस फंक्शन का, एंड किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ y अलोन ओनली. कम टू प्रॉब्लम 13. प्रॉब्लम 13 हमें क्या कहता है, प्रॉब्लम 13 है y इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू शो दिस. आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे अगेन कि कैसे करते हैं. सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x. इनको करने के बहुत सारे पैटर्न हैं. फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1 y2,
यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड पुट हियर एंड देन सी कि जब हम इनको ऐड करें तो इसका सॉल्यूशन 0 आए कि नहीं आए। ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है इसका कि व्हाट टू डू, जो मैं आपको करके बता रहा हूं, हम y1 और y2 ही लेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर बनाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का बन जाएगा y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 cos का माइनस साइन एंगल एज इट इज, और एंगल का लॉग का फिर से 1 अपॉन जो भी उसका एंगल हो x का करेंगे वो 1 आएगा, नो नीड टू राइट, प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज, साइन का करेंगे cos log of x, देन log का 1 upon x. While you are doing these kind of questions where we have to show this thing like guys, so take the denominator, whatever the denominator is there, and cross multiply in each and every step, then these kind of question will become so easy. अब इसका एलसीएम कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा x y1, और यहां बन गया -3 साइन log of x प्लस 4 cos log of x. नाउ डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है विद रिस्पेक्ट टू x. यूज प्रोडक्ट रूल हियर, यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 यानी dy अपॉन dx, व्हेन आई विल डिफरेंशिएट दिस तो ये बन जाएगा y2, और यू कैन से दैट डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर, एक ही बात है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का करेंगे 1, नो नीड टू राइट, इक्वल टू -3 साइन का किया cos एंगल एज इट इज, एंगल का किया 1 अपॉन x का किया 1, अगेन cos है माइनस पहले ही लगा देता हूं, 4 साइन log of x अपॉन x, अगेन एलसीएम इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना x स्क्वेयर y2 प्लस x y1, यहां पे बचा माइनस कॉमन ले लो, 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x. दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो ये बन गया -y, x स्क्वेयर y2 प्लस x y1, y को उधर ले आते हैं, x स्क्वेयर y2 x y1 प्लस y इज इक्वल टू, so this is your solution. So if you will prove like this तो it will become more easy. Otherwise अगर आप इसको यहां नहीं लेके जाते हैं then you have to use u upon v formula and that is little bit complicated, time consuming ज्यादा होगा, ये थोड़ा सिंपल है. Pause the video to note down. Now come to problem 14, 15. So all the problems 14, 15, 16, 17 all are very important. Let us see. So y is equal to this, show that we have to prove this one. Now whatever the method I taught you कि भाई अगर डिनोमिनेटर आएगा we have to cross multiply, जो जो टर्म बनती जाएंगी हम उनको लिखते जाएंगे. Let us see कैसे. Solution. y is equal to a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx. अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है एज इट इज, e का करेंगे, e का हमेशा सेम रहता है, अब होगी पावर की, तो पावर कितना आ गया, mx का करेंगे m, कांस्टेंट है m, बाहर आ गया x की 1, प्लस b e की पावर nx इंटू m. क्लियर. नाउ फाइंड आउट d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर इज इक्वल टू a e की पावर mx, m ऑलरेडी है
ये वाला, इसका दोबारा करेंगे। अगेन देखो, एक बार इसको देखो ध्यान से, ये m मैं बाहर लिख लेता हूं। डिफरेंशिएट किसको करना है? सिर्फ इसको, e की पावर, क्योंकि इसी के साथ x है, e की पावर mx एज इट इज। इसका दोबारा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? m प्लस bn e की पावर nx इंटू n। सो ये क्या बन गया? a m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx। नाउ अब यहां पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसको लिखा जा सकता था, सो वी हैव ओनली वन क्लू दैट पुट दिस वैल्यू हियर एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड में LHS, ये बन गया a m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx माइनस ये टर्म m प्लस n के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको। ध्यान से देखें, माइनस dy अपॉन dx को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? m प्लस n के साथ। तो यानी सबसे पहले ये टर्म m के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? n के साथ। सो माइनस m प्लस n ब्रैकेट में टर्म a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, फिर प्लस m n और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? y a e mx प्लस b e nx, और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के। इट्स ए क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई नाउ a m स्क्वेयर e mx प्लस b n स्क्वेयर e nx माइनस, पहले मैं m के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस a m स्क्वेयर e mx माइनस b m n e nx। फिर n के साथ करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस a m n e की पावर mx माइनस b n स्क्वेयर e की पावर nx। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस a m n e की पावर mx प्लस b m n e की पावर nx। ये ऑल द टर्म्स विल बी कैंसल्ड, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वी प्रूव। सो लाइक दिस यू कैन प्रूव these kind of questions. Now come to problem 15. y is equal to 500 e की पावर 7x plus 600 e की पावर minus 7x and we have to prove. So d square y upon dx का square equal to 49y. Solution. Let us see. y is equal to 500 e की पावर 7x plus 600 e की पावर minus 7x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. dy upon dx. 500 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। e का करेंगे, e का एज इट इज रहेगा, 7x का होगा तो 7 आ जाएगा, प्लस 600 एज इट इज e की पावर माइनस 7x, फिर से करेंगे तो ये बनेगा माइनस 7x. नाउ टेक this 7 or multiply this 7 or leave as it is, no need to do anything. Again differentiate with respect to x. dy square y upon dx का square is equal to 500 into 7. इसका करेंगे e की पावर 7x अगेन इंटू 7 प्लस इसका करेंगे 600 है मल्टीप्लाई माइनस 7 है e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7. नाउ सी केयरफुली,
ये 7 इंटू 7 49 है, ये दोनों से बाहर ले लेता हूं 49. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 500 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 e की पावर माइनस 7x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो ये बन गया 49y. किसकी वैल्यू डी स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर. So like this you can solve it. It's a very easy method. Pause the video to note down. So come to problem 16 and 17, again very important, especially 17 problem. So let us see 16 problem. If e की power y, so e की power y x plus 1 is equal to 1. Differentiate with respect to x. तो ये प्रोडक्ट है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी करेंगे तो x की 1 1 की 0, तो ये 1 हो जाएगी. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, e की पावर y की करेंगे तो e की पावर की y एज इट इज, y की होगी क्या dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बना e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y, x प्लस 1 e की पावर y. ध्यान से देखो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1. सो कैन आई राइट 1 इंस्टेड ऑफ दिस, मैं लिख सकता हूं बिल्कुल 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. सो इट इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y. आप जहां पे भी वैल्यू, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो भी y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो, वी कैन पुट टू मेक द क्वेश्चन इजी. नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको दोबारा से ये रूल लगाना पड़ेगा. अगेन डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर माइनस बाहर e की पावर की करेंगे तो वो क्या हो जाएगा e की पावर y. y की दोबारा से करेंगे dy अपॉन dx. अब देखते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. तो एक तो आ गया, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dy अपॉन dx की. सो इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट dy अपॉन dx? यस आई कैन राइट. इट इंप्लाइज इसकी जगह पर आई एम राइटिंग हियर dy अपॉन dx, और ये हमारे पास ऑलरेडी है. सो डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. ऑलवेज चेक एंड मूव टूवर्ड्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं. सो लाइक दिस यू कैन प्रूव इजीली. कम टू क्वेश्चन नंबर 17. अगेन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, आई विल टेक y1 y2 बिकॉज इन आंसर वट एवर वी हैव टू प्रूव देयर इट्स रिटन y1 y2. सो y1 का y का आ जाएगा y1. हियर पावर डाउन, पावर में एक कम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. तो पावर में 2 माइनस 1 1 हो गया. नाउ फंक्शन की tan इनवर्स की होती है 1 अपॉन 1 प्लस x. फिर एंगल की x की 1 होती है. सो बिफोर 2 or 3 क्वेश्चन बैक आई टोल्ड यू whenever denominators are there just cross multiply to make the question more easier. So इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा, इट इंप्लाइज क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y1 का करेंगे y2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
Understood? So now again, denominator is there, cross multiply. So 1 plus x square का square y2 plus 2x 1 plus x square y1 is equal to 2. Take this 2 or it's already proved now. 1 plus x square का square y2 plus 2x 1 plus x square y1 equal to 2. So this is your answer. So if you cross multiply this denominator, it will become more easy. Otherwise you have to use u upon v formula, and that will make sometime it will very complicated. So now you have to solve all these questions from problem 10 to problem 17 in your copy. And still, if you face any kind of difficulty, then you can ask on WhatsApp, or you can write in the comment box also. Subscribe the channel to get the latest video, and like and share the videos also to your friends wherever it need, if you feel. Till that, Jai Hind.